Assalamu alaikum, and again, I welcome you to today's first formal session for BSc Honors in Applied Accounting by the Oxford Brookes University. अच्छा, आज के सेशन में I am assuming that you have already taken, you have already attended my orientation session. If not, please let me know, and we would be happy to share with you the recorded lecture or the recorded session of that. तो basically हमने orientation session में कोई ज़्यादा technical चीज़ें cover नहीं की थी. So far हमने orientation session में एक eligibility criteria पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कि OBU के program में essentially क्या चीज़ें covered होती हैं. एक basic हमने passing ratio भी समझा था कि it somewhat ranges between 65 to 70%, which is the global passing ratio. For now, I think जो recent information pack आया है उसमें examiner ने 67% का passing ratio दिया है, which is quite good enough. So basically, if you work with a certain sense of discipline and you simply trust your mentor and you stay in touch with your mentor, you should be hopefully, inshallah, you should be good to go. तो बेसिकली आज के सेशन में हम वहीं से अपनी बात कंटिन्यू करेंगे. हम हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट पे बात शुरू करेंगे. यानी वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ आवर डिस्कशन और अ बेसिक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग कि हमारी रिसर्च रिपोर्ट किस तरीके से फॉर्मुलेट होनी चाहिए. वील कीप इट वेरी सिंपल. तो वी वोंट बी गेटिंग इन अ लॉट ऑफ द टेक्निकलिटीज या कुछ बहुत अभी बहुत चैलेंजिंग एरिया नहीं होगा. येट इट इज गोइंग टू बी इक्वली इम्पॉर्टेंट. हम कुछ कोर एसेंशियल चीजें समझने की कोशिश करेंगे और हमारी रिसर्च रिपोर्ट से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे. सो बेसिकली व्हाट डू यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज download the research and analysis project information pack for 2024 and 2025. जब आप गूगल पे जाके रैंडमली ओबीओ इन्फॉर्मेशन पैक लिखेंगे, इट इज वेरी पॉसिबल कि आपके पास बहुत सारी सर्च रिजल्ट्स आ रही हों एंड बहुत सारे पुराने इंफॉर्मेशन पैक्स भी आ रहे हों. क्योंकि ये आजकल का प्रोग्राम नहीं है, इसमें बहुत सारे ईयर्स के इंफॉर्मेशन पैक्स आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं. सो जस्ट बेयर इन माइंड कि जो भी इंफॉर्मेशन पैक आप डाउनलोड करेंगे वो इंफॉर्मेशन पैक इज गोइंग टू बी द वेरी रीसेंट वन फॉर योर सबमिशन पीरियड विच इज फॉर 2024 एंड 2025. अच्छा, इंफॉर्मेशन पैक बेसिकली होता क्या है? इंफॉर्मेशन पैक काइंड ऑफ समराइजेज all the marking criteria, all the guidance, all the requirements कि essentially एक examiner किसी student से क्या expect करता है, क्या guidelines होती हैं for any student to secure a pass, किस तरह के topics available होते हैं. Basically it is literally like a detailed Bible guide for any OBU student, for any OBU mentee. As far as when we speak about this point in time, for now, you just need to download that OBU information pack or you just need to download that document. वो करीबन कोई 70-80 पेज का डॉक्यूमेंट होता है. I don't expect you to read it in detail for now, but the purpose of downloading it is कि हम अपना हमारे कमिंग सेशंस में उसको बैक एंड फोर्थ रेफर कर रहे होंगे. लाइक आई सेड, उसमें बहुत ग्रैन्युलर लेवल पे जाके एग्जामिनर समझाता है कि भाई हम व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एग्जाम फ्रॉम अ स्टूडेंट, किस तरह के पिटफॉल्स होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम एरियाज दैट वी हैव आइडेंटिफाइड इन द पास्ट that a student must be aware of or that a student must be careful of. So for now, I suggest that you do download that OBU information pack जहां पे सारी डिटेल में आपको रिक्वायरमेंट समराइज होंगी. अगेन, I don't expect you to read it. You can give it a quick read if you really want. But the purpose of downloading the information pack is कि हम उसको back and forth हमारे sessions में रेफर कर रहे होंगे. अच्छा, कोशिश ये करेगा that you use one dedicated laptop. So for the purpose of this submission, आप कोशिश करें कि आप one dedicated laptop, one dedicated PC का इस्तेमाल कर रहे हों. It can be any PC. It can be your work PC. It can be your personal PC. But कोशिश ये करेगा कि शुरू से लेकर आखिर तक, all the way up till when we are submitting our documents, when we are submitting inshallah in November 2024, आप एक पीसी का इस्तेमाल कर रहे हो. अच्छा, why is this very important and I will emphasize on this is because कुछ recent attempts में
एक स्टूडेंट था जिसकी रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन कमेटी में भेज दिया गया था। होता यह है कि अगर किसी एथिकल ग्राउंड्स की बेसिस पे किसी स्टूडेंट की रिपोर्ट को फेल किया जाता है, किसी स्टूडेंट की रिपोर्ट को रोक दिया जाता है, तो बिकॉज द एग्जामिनर इज a little doubtful on the ethical stance or या on the ethical, I would say, ethical grounds of the student, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी के पास उसका केस भेज दिया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी का ये व्यू था कि भाई जो स्टूडेंट है जिसने रिपोर्ट सबमिट की है, उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उस डॉक्यूमेंट की अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाके देखूं तो उस प्रॉपर्टीज में जो फाइल क्रिएशन आ रहा है, यानी फाइल क्रिएशन से मुतालिक डिटेल्स आ रही होती हैं, तो उसमें लैपटॉप का मॉडल नंबर, लैपटॉप की डिटेल्स आर डिफरेंट देन द वन जिससे जो डॉक्यूमेंट इवेंचुअली सबमिट हुआ था। तो बेसिकली थ्रू आउट जब स्टूडेंट उस रिपोर्ट पे काम कर रहा था, वो डिफरेंट पीसीज के थ्रू उसकी रिपोर्ट गुजरी। अच्छा, दिस सजेस्ट या एज इन मतलब टू द एग्जामिनर, इट उसके दिमाग में ये डाउट हुआ था कि द स्टूडेंट ने लेट्स से अपनी रिपोर्ट किसी और से लिखवाई, या स्टूडेंट ने अपनी रिपोर्ट का एक्सेस किसी और को दिया, किसी कॉलीग को दिया, किसी फ्रेंड को दिया, या ऑल टुगेदर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो उसने वो रिपोर्ट खुद लिखी ही नहीं थी। अच्छा, इट इज वेरी कॉमन फॉर अस कि भाई हम लोग लेट्स से कभी काम, या इवन मैं भी कुछ काम कर रही होती हूँ, कोई पर्सनल काम कर रही होती हूँ, लेट्स से समथिंग वेरी बेसिक इज ड्राफ्टिंग दी स्लाइड्स, तो मैं कभी अपने वर्क लैपटॉप पे कर लेती हूँ, कभी अपने ऑफिस के पीसी पे कर लेती हूँ। सो आई गो बैक एंड फोर्थ एंड आई शिफ्ट बिटवीन इट, एंड फॉर अस इट्स वेरी कॉमन। बट उस एग्जामिनर को ये बात समझाना बहुत मुश्किल हो गया था कि भाई लेट्स से हम इस तरह के हाउस होल्ड्स में रहते हैं कि हमारे पास एक पीसी का एक्सेस हर टाइम पे नहीं होता, या द स्टूडेंट इज वर्किंग, उसके पास घर पे किसी और पीसी का एक्सेस होता है, ऑफिस में किसी और पीसी का एक्सेस होता है। बट एग्जामिनर को ये बात समझाना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द स्टूडेंट, एंड द पॉइंट इज नॉट इवन टाइम, द पॉइंट इज वाई रिस्क इट, क्योंकि आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हो, अभी से लेके आप नवंबर तक इस रिपोर्ट पे काम कर रहे होगे। 5 मंथ्स इज नो जोक, 5 मंथ्स इज बिग इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इन द मॉनेटरी सेंस ऑल्सो, कि भाई आप इतनी सबमिशन की फीस पे कर रहे हो, देन वाई रिस्क इट, लेट्स बी ऑन द सेफ साइड एंड लेट्स ट्राई, या लेट्स नॉट ट्राई, लेट्स कमिट टू आवरसेल्व्स कि हम एक डेडिकेटेड पीसी या एक डेडिकेटेड लैपटॉप ही इस रिसर्च रिपोर्ट की पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसी एक सिंगल पीसी पे आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहे होंगे। अच्छा, कोशिश आपने ये करनी है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एटलीस्ट 2016 का वर्जन हो, एटलीस्ट। एटलीस्ट से ये मुराद है कि आप और आगे वाले वर्जन या मोर एंड मोर रिसेंट वर्जन भी यूज कर सकते हैं, बट इट मस्ट एटलीस्ट बी द 2016 वर्जन। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। You don't need any other tools, but primarily आपने इन 3 चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, टुडे, आज 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 ही के दिन, आज टुडे एंड टुडे इटसेल्फ, इफ यू रियली हैव डिसाइडेड कि आपने नवंबर 24 की ही अटेम्प्ट में जाना है और नवंबर 24 की ही अटेम्प्ट में आपने सबमिट करना है, देन प्लीज आज के ही दिन यू नीड टू क्रिएट द फॉलोइंग 5 फाइल्स टुडे। अच्छा, वो 5 फाइल्स कौन सी हैं? वो 5 फाइल्स आर गोइंग टू बी, ए, इट इज गोइंग टू बी अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ ब्लैंक फाइल, यू कैन नॉट वर्क ऑन द एंटायर रिसर्च रिपोर्ट टुडे। आपने बस ऑल यू नीड टू डू इज ओपन अ ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट फाइल, और आपने उसको किस नाम से सेव करना है? दैट नेम इज गोइंग टू बी योर ACCA ID फॉलोड बाय RR। RR विल इंडिकेट कि ये एक रिसर्च रिपोर्ट है। तो आपने सबसे पहले तो आपने अपना लैपटॉप खोलना है, लैपटॉप में एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करना है दैट लैपटॉप एंड दैट फोल्डर इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस OBU सबमिशन। उसमें आपने सबसे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल क्रिएट करनी है। वर्ड की फाइल का नाम क्या देना है आपने? योर ACCA ID, लेट्स से, मतलब मैंने एक मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 ACCA ID फॉलोड बाय RR। RR इंडिकेट करेगा कि ये एक रिसर्च रिपोर्ट है, ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो ये डॉट डॉक्स आपने नहीं लिखना, वो ऑटोमेटिकली जब आप एक वर्ड की फाइल सेव कर रहे होते हो वो डॉट डॉक्स की एक एक्सटेंशन के उससे सेव कर लेता है। सो यू डोंट नीड टू राइट दैट, ऑल यू नीड टू राइट इज ऑल द वे अप टिल हियर।
सही है, तो इट इज गोइंग टू बी योर ACCA ID followed by RR. No space, no symbol, no extra characteristic, कुछ भी नहीं, बस एग्जैक्टली आपने यही करना है जैसा मैं कह रही हूँ। ACCA की ID लिखेंगे और RR लिख देंगे, RR इन कैप्स। अच्छा, दूसरा document that you need to save is again going to be a Microsoft Word file. उसका नाम आपने RR नहीं देना, this time it's not your research report, this time it is SLS. अच्छा, I'll quickly summarize कि ये 5 फाइल्स क्या होती हैं, but let me finish off what I'm saying first. Again, आपने इसका नाम क्या रखना है, अपने आपकी ACCA ID SLS. No space, no gap, no special characteristic, no exclamation mark, no full stop, nothing, just ACCA ID and SLS. Then तीसरा is also going to be a Word file, ACCA ID LOR. चौथा is going to be a PPT. It is going to be a PowerPoint presentation. तो उसका भी आपने नाम वो it is going to be PPT, ACCA ID and presentation. पांचवा and last is going to be your Excel file. Excel file, Microsoft Excel आपने खोलना है, उसका नाम आपने सेव करना है ACCA ID के नाम से followed by Excel. देखो, लाइक आई सेड कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो बिल्कुल हम वर्ड का शुरू के 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। पावर पॉइंट के लिए हम इस डॉक्यूमेंट के लिए हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एंड ये आखिरी डॉक्यूमेंट के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, इसेंशियली like I said, I'll just help you quickly summarize कि documents क्या होते हैं. So as part of this OBU submission, you need to work on 5 documents या 5 submittals में कह लूँ, या 5 deliverables में कह लूँ, या 5 documents कह लूँ. तो whenever you are making a submission for this attempt या पिछली कुछ attempts से similar ही scenario है, आपने 5 documents पे काम करना होगा. इसमें पहली document होती है is your research report. रिसर्च रिपोर्ट बेसिकली 7,500 वर्ड्स का एक डॉक्यूमेंट होता है. उसका वर्ड काउंट का रेंज है 7,000 वर्ड्स टू 7,500 वर्ड्स. उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ योर सबमिशन. दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग. यहाँ पे हम हमारा सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे. यहीं पे हम हमारी मैक्सिमम क्लासेस को सर्कल कर रहे होंगे. मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस आर प्राइमरीली गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द रिसर्च रिपोर्ट. हम बहुत डिटेल में एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस समझेंगे. You will send this research report back and forth to me for the purpose of my review, और उसकी बेसिस पे मैं आपको अपना एक 1-on-1 फीडबैक प्रोवाइड करूंगी. इस रिसर्च रिपोर्ट के ही अराउंड प्राइमरीली हम लेट्स से अपनी 1-on-1, अभी तो ये एक जूम का सेशन है, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, बट फॉर दिस रिसर्च रिपोर्ट मेरे रिव्यूज के पर्पस के लिए हम 1-on-1 क्लासेस या 1-on-1 आई वुड से कॉल्स स्केड्यूल करेंगे, जहां पे मैं आपकी रिसर्च रिपोर्ट डिस्कस करूंगी, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट शेयर करूंगी आपसे, या अपना एक जनरल फीडबैक भी शेयर करूंगी. For now, you need to bear in mind that this is going to be the most time consuming. हम हमारा सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे. दूसरा डॉक्यूमेंट इज SLS, स्किल्स एंड लर्निंग स्टेटमेंट. ये करीबन 1800 से 2000 वर्ड का एक डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं. इट इज जनरली नॉट दैट टाइम कंज्यूमिंग, बट ये एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट होती है. सेल्फ रिफ्लेक्टेड स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि भाई how was your journey like, what did you learn out of this process of OBU, how do you feel you have grown as an individual, as a person, in your professional space, in your personal space, what do you generally feel about this journey, yeah, how do you think it has improved your professional prospects. So basically एक self-reflective statement होती है. We will of course get into the details, but for now this is all that you need to know. तीसरा एक और डॉक्यूमेंट बनता है जिसको लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं, जो एक डॉक्यूमेंट हमने LOR के नाम से सेव किया था. वो एक बहुत सिंपल वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है. यू डोंट नीड टू वर्क ऑन दैट, वो ऑटो जनरेट हो जाता है. चौथा इज गोइंग टू बी अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. देखो
प्रेजेंटेशन स्किल्स एक ग्रेजुएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट और एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट. तो as part of this program requires you कि once you're done with your research report या once you have primarily concluded on your research report, आप अपने mentor को एक प्रेजेंटेशन डिलीवर करें और उस प्रेजेंटेशन में आप अपनी क्रक्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट समझाएं उनको. आप उनसे एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन के जरिए आप उनको ये बताएं कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स क्या रही हैं. तो दैट इज व्हाट दिस पावर पॉइंट इज गोइंग टू बी. और पांचवा is going to be an Excel file. An Excel file basically again एक Microsoft Excel की फाइल होती है. यहाँ पे आपने जो आपकी प्राइमरी कंपनीज होंगी, वी विल बी डिस्कसिंग द कंपनी शॉर्टली, बट जो आपकी प्राइमरी कंपनीज होंगी उन कंपनीज की यहाँ पे आप प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लॉट कर रहे होगे. सो प्राइमरीली यू विल बी प्लॉटिंग दिस SOFP, which is the statement of financial position, जिसको हम more commonly balance sheet कहते हैं. आप P&L प्लॉट कर रहे होगे, आप उनकी let's say OCI वगैरह कभी अगर प्लॉट करना चाहो तो प्लॉट कर रहे होगे, बट ये दो स्टेटमेंट्स आप लाजिम प्लॉट कर रहे होगे. अच्छा, इनमें इन दो डॉक्यूमेंट्स को मार्क किया जाता है. इन दो डॉक्यूमेंट्स को की बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि कोई स्टूडेंट पास है या ये स्टूडेंट फेल है. I don't want to say the word fail. It's not the very right word that I feel. But anyway, कोई student, if a student is able, or if let's say if a student is successful or if a student is not successful. अच्छा, research, it is possible कि आपकी research report पास हो जाए लेकिन आपकी SLS फेल हो जाए. तो होता यह है कि students क्योंकि टाइमलाइंस नहीं फॉलो कर रहे होते, अनफॉर्चुनेटली, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, कि हम लगातार बोलते रहते हैं कि भाई आप हमें रिसर्च रिपोर्ट लेट्स से मुझे पहला ड्राफ्ट शेयर करो मिड ऑफ सितंबर में या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, एंड आई कीप पुशिंग देम. लेकिन होता यह है कि वो अनफॉर्चुनेटली दे फेल टू फॉलो द टाइमलाइंस. वो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं रख पाते और एकदम एंड मोमेंट पे उनकी रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट होती है. अच्छा, रिसर्च रिपोर्ट तो जैसे तैसे कंप्लीट हो जाती है, मैं भी रिव्यू कर लेती हूँ, फीडबैक प्रोवाइड करती हूँ, एंड उसमें जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उस पर हम काम भी कर लेते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से SLS टेक्स अ बैक सीट कि हाँ यार ये तो सेल्फ रिफ्लेक्टेड स्टेटमेंट ही है, क्या ही लिखना पड़ जाएगा. मतलब उसमें कोई एनालिसिस या एवेल्युएशन तो नहीं करनी, उसमें कोई रिसर्च नहीं करनी, वो तो प्राइमरीली मुझे अपने थॉट प्रोसेसेस को या अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को एक आई जस्ट हैव टू गिव वर्ड्स टू इट, तो उस पर क्या ही हो जाएगा. बट there have been many instances in the past कि या many students in the past जिनकी research report तो निकल गई होती है लेकिन SLS पे एग्जामिनर आके रोक देता है. फिर देन व्हाट हैपेंस इज कि स्टूडेंट को दोबारा अगले अटेम्प्ट का वेट करना पड़ता है और दोबारा से SLS को सबमिट करना पड़ता है. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर, अगेन इट टेक्स मनी, इट टेक्स, एंड फजूल में आपकी आपकी इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ योर टाइम. तो just bear that in mind. अच्छा, also one very important thing I would like to point out is कि kindly आप लोग या आप उस ब्रांड न्यू फाइल्स क्रिएट करना. आज के दिन पे जाना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक न्यू को ऑप्शन होता है, नई फाइल को जेनरेट करना, नया प्रेजेंटेशन को जेनरेट करना, नए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को जेनरेट करना और एक ब्रांड न्यू एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को जेनरेट करना. देयर हैज बीन वन स्टूडेंट इन द पास्ट जिसने जब अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए and when the examiner when it was being reviewed by the examiner, तो उस स्टूडेंट का पे ये फीडबैक आया कि नहीं, मतलब दिस स्टूडेंट देन हैज टू रीसबमिट. एंड उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि स्टूडेंट लेट्स इन 2020 में सबमिट कर रहा था, 2020 में सबमिट कर रहा था, उसकी एक्सेल फाइल की क्रिएशन डेट, क्योंकि जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो उस फाइल की प्रॉपर्टीज में उसकी इनिशियल क्रिएशन डेट सेव हो जाती है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो उसकी इनिशियल क्रिएशन डेट जो है वो 2010 की आ रही है, यानी 2010 की आ रही है. अच्छा, हाउ इज इट पॉसिबल कि 2020 में सबमिशन हो रहा है और फाइल 2010 में क्रिएट हो रही है? अच्छा, वो थी भी एक्सेल की फाइल, यानी इट वाज नॉट अ फाइल जिसकी बेसिस पे एग्जामिनर ये डिटरमाइन करे कि कोई स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है. पास या फेल वाली प्राइमरीली दो ही फाइल्स होती है, एक SLS होता है, एक रिसर्च रिपोर्ट होती है. बाकी तीन फाइल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट, बट वो एक पास या फेल का क्राइटेरिया डिटरमाइन नहीं करती. तो वो थी भी एक्सेल की फाइल, लेकिन उसकी बेसिस पे
एग्जामिनर ने कहा कि नहीं नहीं, मतलब वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, दिस इज वेरी अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, जब स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव सुना गया तो स्टूडेंट ने कहा कि भाई ये फाइल मेरी, हमारे तो लेट्स से ऑडिट में कितना कॉमन होता है कि हम यार वही वर्किंग पेपर्स को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो सेम मैंने भी सेम किया, ऑफिस की एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल क्रिएटेड थी, उस पर मैंने सब कुछ मिटाया और उस पर मैंने अपनी चीजों को प्लॉट किया, एंड आई कैरीड फॉरवर्ड दैट फाइल, और मैंने उसी फाइल को सबमिट कर दिया। तो एक उसकी इतनी सिली एक छोटे से भंड की वजह से हुआ ये कि दैट द स्टूडेंट हैड टू गो थ्रू द रीसबमिशन प्रोसेस, उसको दोबारा से पैसे पे करने पड़े, उसको दोबारा से अपनी फाइल्स को सबमिट करना पड़ा। हालांकि ना उसकी एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन में कोई लैकिंग थी, ना उसकी रिसर्च रिपोर्ट में कोई लैकिंग थी, ना ही उसके एसएलएस में किसी चीज की कमी थी। एक छोटी सी सिली सी मिस्टेक की वजह से उसकी रिसर्च रिपोर्ट को उसे दोबारा सबमिट करना पड़ा। सो माय पॉइंट हियर इज कि प्लीज ये पांचों फाइल्स को ब्रांड न्यू फाइल्स क्रिएट करना, किसी पुरानी फाइल को कैरी फॉरवर्ड मत कर लेना। ब्रांड न्यू फाइल्स, आई विल write it here so it really stays in your mind, brand new files to be created. अच्छा, also ये files will be the master files. अच्छा, what do I mean by this is कि only you will have control over these files. As part of our sessions होगा कुछ यूं कि आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट ड्राफ्ट करोगे, आपने पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, पहला ड्राफ्ट लिखा अराउंड मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर, मोर टुवर्ड्स फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, आपने अपना पहला ड्राफ्ट मुझसे शेयर किया। आई विल बी, ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करूं, रिसर्च रिपोर्ट में कुछ काटूं, रिसर्च रिपोर्ट में कोई आप कमेंट्स दूं कि यार ये चीज बेहतर कर लो, ये चीज डज नॉट मेक सेंस, या इस चीज पे व्हाई आर यू नॉट एलैबोरेटिंग इट, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ऐसे 10,000 तरह के कमेंट्स हो सकते हैं मैं आपकी रिसर्च रिपोर्ट में लिख के आपको भेजूं। whatever document you will be sharing with me is going to be a copy of your master file. Only you will have access to the master file, और वही master file is going to be the file जो आप eventually OBU में submit कर रहे होगे। तो जो फाइल आपने मुझे भेजी, मैंने उसमें कोई लेट से कोई चेंजेस किए, कोई एक लाइन काट दी, तो आई विल बी डूइंग दैट। जब मैं ट्रैक चेंजेस खोल के उसमें लेट से कोई एक लाइन काटनी होगी तो मैं एक लाइन काट दूंगी। अदरवाइज मेजरली मैं अपने कमेंट्स प्रोवाइड कर रही होंगी, सॉरी, ओके, अदरवाइज मेजरली मैं अपने कमेंट्स प्रोवाइड कर रही होंगी। वट एवर, मतलब उसकी बेसिस पे, मेरे रिव्यू के बेसिस पे जो भी चेंजेस होंगी फ्रॉम दैट इनिशियल ड्राफ्ट to the, let's say, the second draft or the third draft or the final draft that we have finalized, वो सारी की सारी चेंजेस आपने उस मास्टर फाइल में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। यानी देन यू विल नो लॉन्गर बी कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने मुझे भेजा था रिव्यू के लिए, वो डॉक्यूमेंट खत्म, वो डॉक्यूमेंट फिनिश, मतलब यू विल ओनली बी रिफरिंग टू दैट डॉक्यूमेंट। आप बार बार मेरी वाली फाइल खोल के देख रहे होगे कि अच्छा यार मैम फरा ने ये कमेंट दिया तो अब मैं अपनी मास्टर फाइल में जाके ये वाली चेंजेस करूं, मैम फरा ने इस पे क्वेश्चन मार्क डाला तो ओके सो आई नीड टू वर्क ऑन दिस। बट वट एवर चेंजेस यू आर गोइंग टू मेक, वट एवर यू आर गोइंग टू, हाउ एवर यू गोइंग टू एड्रेस माई कॉमेंट्स, प्लीज डू दैट इन दैट वन मास्टर फाइल। जो भी होंगी अदर फाइल्स आपने मुझे भेजी रिव्यू के लिए, मैंने दोबारा आपको एक फाइल अपना रिव्यूड वर्जन भेजा, फिर लेट से 15 दिन बाद दोबारा आपने मुझे एक रिव्यू के लिए भेजा, मैंने अपने फीडबैक्स आपको भेजे, एंड सबमिशन से 2 दिन पहले आपने मुझे फाइल भेजी, मैंने फिर आपको अपने लास्ट कमेंट्स भेजे, कोई एक दो छोटे मोटे फुल स्टॉप के चेंजेस करके भेजे, वो सारी की सारी कॉपी होंगी। कॉपी फाइल का हम कुछ नहीं करेंगे, मास्टर फाइल इज गोइंग टू इज विल बी द फाइल दैट इज गोइंग टू बी सबमिटेड। तो याद रखना, क्योंकि होता ये है कि वंस लेट्स से इफ आई मेक चेंजेस टू अ फाइल, तो उसमें ऑथर नेम चेंज हो सकता है, ऑथर नेम कैन चेंज टू मैम फरा और इट कैन चेंज टू एनी अदर पर्सन। तो जो मतलब बेयर इन माइंड कि एक ही फाइल पे काम हो रहा हो, एक ही डॉक्यूमेंट पे काम हो रहा हो, और इस डॉक्यूमेंट का एक्सेस सिर्फ आपके पास हो, nobody can make changes to your document. अच्छा, also याद रखना कि please keep this research report. You will be creating 2 RR files. No. You will be creating one research report, one RR file. आप उसे मुझसे शेयर करोगे, तो जब आप मुझसे शेयर करोगे ना अपनी रिसर्च रिपोर्ट को, वो ऑटोमेटिकली आई विल प्रिज्यूम कि यार ये तो एक कॉपी फाइल है, फिर मैं उसको आई विल शेयर बैक अ वर्जन विद यू जिसमें मेरे कमेंट्स होंगे, तो मेरा एक रिव्यूड वर्जन होगा जिसमें मेरा फीडबैक होगा। आप उस फीडबैक को, उन कमेंट्स को देखोगे
and you will work again on the master file जो आपने create की है. You don't need to create two separate files. That is not what I mean. Once you share that version with me, let me know if you please understand my response here, if we are on the same page with respect to this. But जब आप मुझसे अपनी फाइल शेयर करोगे, वो ऑटोमेटिकली मैं एज्यूम करूंगी कि ये कॉपी फाइल ही है. तो आपने एक सिंगल फाइल पे, एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे ही काम कंटिन्यू करना है. मेरे रिव्यूड वर्जन पे काम कंटिन्यू मत करना, फिर उस पे जाके चेंजेस मत करना. मतलब यू कैन यूज दैट एज ए रेफरेंस पॉइंट कि भाई मैम फरा ने क्या कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं मेरी रिपोर्ट में, बट आपकी ही रिपोर्ट इज गोइंग टू बी द रिपोर्ट व्हिच इज गोइंग टू बी सबमिटेड. सो आई होप दैट दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. ओके ओके, थैंक यू. अच्छा, मैं क्या कह रही थी? यस. अच्छा, आपने ना अपनी रिसर्च रिपोर्ट को प्लीज, research report, I will be stressing this throughout the sessions that we are going to have, but please apni research report, it goes without saying that you need to keep it to yourself only. So the only 3 people who will be reading your research report, who will know कि आपने let's say profitability ratio में क्या लिखा है, आपने gearing ratio में क्या लिखा है, यानी even up so much so to a point कि आपने कौन सी कंपनी भी सिलेक्ट की है, कौन सा टॉपिक भी सिलेक्ट किया है, ये सिर्फ 3 लोगों को पता होगा, मुझे, आपको और एग्जामिनर को. सो प्लीज डू नॉट शेयर योर रिसर्च रिपोर्ट और योर SLS और एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर दैट मैटर टू विद योर कॉलीग, विद योर सुपरवाइजर, विद योर मैनेजर, इवन विद योर बेस्टेस्ट फ्रेंड. प्लीज, it's simply not worth the risk. It's not worth the risk. आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट को अपने तक ही रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं ही आपकी रिसर्च रिपोर्ट रिव्यू कर रही होंगी, एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर ही आपकी रिसर्च रिपोर्ट रिव्यू कर रहा होगा. अच्छा, also I would like to highlight here, इसके OBU के जब इंफॉर्मेशन पैक आप डाउनलोड करोगे, तो OBU के इंफॉर्मेशन पैक में एग्जामिनर एक सजेस्टेड स्ट्रक्चर देता है. एग्जामिनर ने ये कहा कि भाई यू कैन फॉलो दिस स्ट्रक्चर व्हेन यू फॉर्मुलेटिंग योर रिसर्च रिपोर्ट, बट इट्स नॉट अ मस्ट. अच्छा, इवन दो इट्स नॉट अ मस्ट, मैं प्राइमरीली स्टूडेंट्स को पुश करती हूँ कि आप यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करो, बिकॉज इस स्ट्रक्चर से रिसर्च रिपोर्ट को समझने में आसानी हो जाती है. इफ यू सी, उसने लेट्स से उसने सेक्शन 1 लिखा इंट्रोडक्शन, उसने सेक्शन 1 का नाम लिखा इंट्रोडक्शन टू योर रिसर्च रिपोर्ट. तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने रिसर्च रिपोर्ट को 5 सेक्शंस में तोड़ दिया. अच्छा, अंटिल द प्रीवियस अटेम्प्ट वो 3 सेक्शंस में तोड़ता था रिपोर्ट को, अब उसने 5 प्राइमरी सेक्शंस में तोड़ा है, बट द कंटेंट ओवरऑल जो क्रक्स है रिपोर्ट का, दैट हैज स्टेड द सेम. सेक्शन 1 में उसने इंट्रोडक्शन की बात की, आप ये बताओ कि आपने कौन सी कंपनी सिलेक्ट की है, क्या टॉपिक सिलेक्ट किया है, व्हाट इज द कंपनी अबाउट. सेक्शन 2 में आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताओ कि आप एसेंशियली इस रिसर्च रिपोर्ट से क्या हासिल करना चाहते हो. सेक्शन 3 में आपकी रिसर्च की अप्रोच क्या होगी, आप किस तरीके से रिसर्च कर रहे होगे. चौथा, कौन से आप बिजनेस मॉडल्स यूज कर रहे होगे. अच्छा, इस रिपोर्ट में ना आप डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे होगे. आप हो सकता है स्वॉट मॉडल यूज करो, आप हो सकता है पोर्टर के 5 फोर्सेस यूज करो, आप कोई से भी, या आप हो सकता है पेस्ट एनालिसिस कवर कर रहे हो, कोई से भी आप टूल यूज कर रहे होगे, उन टूल्स का आपने यहाँ पे जिक्र करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, एंड हाउ दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर रिसर्च रिपोर्ट, ये भी बताना है. अलॉन्ग विद दैट आप कुछ अकाउंटिंग मॉडल्स भी यूज कर रहे होगे. सो लेट्स से आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का इस्तेमाल कर रहे हो, आप गेयरिंग रेशियोज का इस्तेमाल कर रहे हो, आप लेवरेज के साथ कवर हो जाता है, आप लिक्विडिटी रेशियोज का इस्तेमाल कर रहे होगे, तो उसका भी आपने एक इंट्रोडक्शन देना है. सो एट दिस पॉइंट यू डू नॉट नीड टू रियली डीप जंप इनटू के आपकी कंपनी की लिक्विडिटी कैसी रही है, यू डोंट नीड टू डू दैट, बट यू जस्ट नीड टू मेंशन कि हाँ यार, इन द फॉलोइंग सेक्शन विच इज गोइंग टू बी द मेजर सेक्शन, फॉलोइंग सेक्शन में मैं ये फला फला मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं फला फला रेशियोज का इस्तेमाल कर रहा हूँ. And section 5 is going to be analysis and evaluation. शुरू के 3 sections are going to be rather simpler yet equally important. ये करीबन 1000 से I would say 1200 words कर लो. 1000 से 1200 words में आपने शुरू के 3 sections लिखने हैं. सेक्शन 4 आपने करीबन 1300 से 1500 words का ड्राफ्ट करना है. And last section is going to be the main section of your report. It is going to be the most time consuming section of your report, most technical area of your report. वो आपने करीबन 4500 वर्ड्स से आप दिमाग में रखो, 4500 से 5000 वर्ड्स के बीच में आपको रखना है. अच्छा, दिस वर्ड लिमिट ये OBU ने स्पेसिफाई नहीं की.
ये ओबीयू ने नहीं स्पेसिफाई किया। ओबीयू ने ये जरूर स्पेसिफाई किया कि 7,500 वर्ड की आपकी रिसर्च रिपोर्ट होनी चाहिए मैक्सिमम, और 7,500 से एक वर्ड भी ऊपर होगा, वील नॉट मार्क दैट। तो ये तो हमें बहुत क्लियरली पता है, लेकिन दिस इज जस्ट व्हाट आई एम पर्सनली सजेस्टिंग टू यू। ऐसा भी हुआ है इन द पास्ट कि भाई स्टूडेंट्स ने लेट्स से 1,000 वर्ड्स की जगह 800 वर्ड्स लिखे हैं फॉर सेक्शन 1, 2 एंड 3, एंड दैट इज फाइन ऑल्सो। मतलब कोई कोई फिक्स या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। या 1,200 वर्ड्स की जगह लेट्स उन्होंने 1,300 वर्ड्स में लिखा है, लेकिन ट्राई कि आप अपना मैक्सिमम वर्ड काउंट बचा के रखो फॉर द फिफ्थ section, which is going to be the major area for the examiner for you to assess on। मतलब वो उसी की बेसिस पे, इस सेक्शन की बेसिस पे ही प्राइमरीली आपकी असेसमेंट कर रहा होगा, which is analysis and evaluation। अच्छा, हम हमारी बात को रिसर्च रिपोर्ट पे ही कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं टॉपिक सिलेक्शन पे। ओबीयू के इंफॉर्मेशन पैक में ऑलमोस्ट टू बी प्रिसाइज 15 ही टॉपिक्स ओबीयू के इंफॉर्मेशन पैक में अलाउड हैं। तो बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स अलाउड हैं। टॉपिक्स रेंज फ्रॉम लेट्स से आप बजट्स के बारे में एक टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में, एक टॉपिक है एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक टॉपिक है मोटिवेशन के बारे में, एक टॉपिक है बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में। इस तरह के वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आर अलाउड बाय द ओबीयू इंफॉर्मेशन पैक। तो आप किसी भी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप चाहो, उन 15 में से किसी भी एक टॉपिक को आप सिलेक्ट करो और उसकी बेसिस पे आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करो। यानी सारे के सारे 7,500 वर्ड्स आप उसी टॉपिक पे लिखोगे, उसी एक टॉपिक पे लिखोगे। हाउएवर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द स्टूडेंट, मैंने तो अब तक जितने स्टूडेंट्स देखे हैं सारे स्टूडेंट्स ने, और जनरली भी ओबीयू कहता है कि ग्लोबली भी अराउंड 70% to 80% स्टूडेंट्स इन दो टॉपिक्स पे फोकस करते हैं। अच्छा, मैं भी पर्सनल, मेरी सजेशन, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन इन्हीं टॉपिक्स के ही होगी, बिकॉज अच्छा, यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट वेरी वेरी सून, बट इन टॉपिक्स में आप प्राइमरीली प्राइमरी सोर्सेज, सॉरी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा का इस्तेमाल कर रहे होते हो। यानी आप वो डेटा का इस्तेमाल कर रहे होते हो जो कि ऑलरेडी गूगल पे या डिफरेंट लेट्स से ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उन कंपनी से मुतालिक डेटा अवेलेबल होता है, उस इंडस्ट्री से मुतालिक डेटा अवेलेबल होता है। लेट्स से आप कंपनी की रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हो, जब आप जीपी मार्जिन लिख रहे हो, तो उस रॉ मटेरियल्स के बारे में आपके पास बहुत इजी और प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो आप 7,500 वर्ड्स लिखने जा रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ जोक। यू विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ डेटा फॉर दैट, अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दैट। तो उस रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए, आपकी एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा मुनासिब डेटा आपको मिल जाएगा। हाउएवर इफ लेट्स से आप कोई बहुत इंटरनल या मतलब किसी ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करोगे जो कि बहुत इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक बात कर रहा होगा, बहुत ग्रैन्युलर लेवल पे बात कर रहा होगा, लेट्स से एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन या लेट्स से मोटिवेशन, तो वो एक बहुत स्पेसिफिक चैप्टर हो जाएगा, एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक हो जाएगा। यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी हार्ड टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड डेटा ऑन दैट। तो देयरफॉर हम टॉपिक 4 और टॉपिक 5 या टॉपिक 5 पे ही प्राइमरीली हमारी डिस्कशन को रिवॉल्व करेंगे। अच्छा, टॉपिक 4 या टॉपिक 5 है क्या एसेंशियली? टॉपिक 4 इज एनालाइज एंड इवैल्यूएट द बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एनालाइज एंड इवैल्यूएट द बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हमने एनालाइज एंड इवैल्यूएट करना है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? विच हैज परफॉर्म एक्सेप्शनली पुअरली ओवर द 3-year पीरियड with a critical analysis for the reasons for its difficulties। यानी टॉपिक 4 ये कहता है कि हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज एंड इवैल्यूएट कर रहे होंगे। एनालाइज और नहीं, एनालाइज एंड इवैल्यूएट। हम एनालाइज भी कर रहे होंगे और हम इवैल्यूएट भी कर रहे होंगे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जिसने एक्सेप्शनली पुअरली परफॉर्म किया है ओवर द लास्ट 3 years, और essentially why the reasons as to why the organization is struggling, why is it facing difficulties, and या vice versa। टॉपिक 5 ये कहता है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है ओवर द लास्ट 3-year पीरियड along with the reasons for its success। अच्छा, एनालाइज और इवैल्यूएट में फर्क क्या होता है? एनालिसिस इज बेसिकली लेट्स से मैं किसी कंपनी
ए का मैं जीपी मार्जिन कंप्यूट करूं और मैं ये देखूं कि ईयर 1 में उसका जीपी मार्जिन था 20%, ईयर 2 में उसका जीपी मार्जिन था 15%, ईयर 3 में उसका जीपी मार्जिन था 7%। एज पार्ट ऑफ माई एनालिसिस मैं ये देखूंगी कि भाई कंपनी का जीपी मार्जिन गिर रहा है, और क्योंकि गिर रहा है, तो क्योंकि कंपनी का जीपी मार्जिन गिर रहा है, व्हाई इज इट फॉलिंग? इट्स फॉलिंग बिकॉज लेट्स से कंपनी की रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो कंपनी की रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो अपनी अपनी प्राइसेस, अपनी इवेंचुअल प्राइसेस दैट इट चार्जेस टू द कस्टमर्स, वो उसने नहीं बढ़ाई है, एज अ रिजल्ट कंपनी का जीपी मार्जिन गिर रहा है। इवैल्यूएशन is going to be much broader than analysis. Analysis में आप primarily reasons for trends, जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी आपके रेशोज आ रहे हैं, उन रेशोज में आप एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो और इन ट्रेंड्स को आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, उन ट्रेंड्स के आप रीजंस ढूंढते हो। लेकिन इवैल्यूएशन इज मोर ब्रॉडर टर्म। इवैल्यूएशन में आप ये देखते हो कि कंपनी का इस पे व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट, what are the implications of gross profit margin decreasing, what are the implications on its stakeholders, what are the implications on its consumers, what are the implications on investors, essentially क्या implication हो रही हैं to other people, to other stakeholders of the company, क्या implications हैं इसकी on the overall strategy of the company, कंपनी की जो ओवरऑल मिशन था, कंपनी का लेट से कंपनी का 2030 का कोई मिशन था, ये मूवमेंट उस विजन को, उस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इंपैक्ट कर रही है, या कंपनी का बाकी रेशियोज पे क्या इंपैक्ट जा रहा है। सो लेट्स से अगर कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है, ऐसा हो सकता है कि कंपनी का इस कंपनी की लिक्विडिटी पे इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, कंपनी की गेयरिंग का इस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो इवैल्यूएशन इज मच ब्रॉडर देन दैट। अच्छा, please note, an analysis that relies solely on the impact of COVID-19 will not have a sufficient depth to secure a pass. ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने कोविड-19 में या इट टुक अ बूम या अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बहुत ड्रास्टिक टर्न लिया, लेकिन कोविड-19 कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर द एक्सेप्शनल पुअर और एक्सेप्शनली वेल परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट इट शुड नॉट बी द ओनली सोल argument, or it should not be the only sole reason. अच्छा, exceptionally poorly और exceptionally well में आपने ये justify करना है कि ये performance किसी organization की has indeed been exceptionally poor या exceptionally well। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यूजुअल ट्रेंड है कि भाई उसका हर साल ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 2% से बढ़ता है, या नहीं 2% तो एक बहुत छोटा नंबर है, उसका हर साल उसका रेवेन्यू लेट से 20% से बढ़ता है। पिछले 10 सालों से हम ये देखते आए हैं कि उस कंपनी का रेवेन्यू 20% से बढ़ रहा है, और पिछले 3 सालों में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये कंपनी मेरे लिए एक्सेप्शनली वेल के क्राइटेरिया में नहीं आएगी। एक्सेप्शनली वेल यानी समथिंग जो कि कंपनी का ट्रेंड नहीं था पॉसिबली, बट पिछले 3 सालों में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पिछले 3 सालों में कंपनी ने वाकई बहुत अच्छा टर्न लिया। अच्छा, टू एनालाइज दैट, ये टू असेस के कौन सी ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो कि एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रही होंगी, आप कंपनी के प्रॉफिट्स को देख सकते हो, आप कंपनी के रेवेन्यू को देख सकते हो, आप कंपनी के कॉस्ट को देख सकते हो, आप ओवरऑल कंपनी जिस इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रही है उस इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में डिस्कस कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कंपनी की लिक्विडिटी प्रोफाइल क्या होगी, आप ये देख सकते हो कि कंपनी ने कोई मर्जर एंड एक्विजिशन किया होगा जिसने कंपनी को एक बहुत एक बूम दिया है ओवर द 3 ईयर पीरियड। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरीके की है, कंपनी से मुतालिक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का आउटलुक रिगार्डिंग दैट कंपनी कैसा है। सो देयर इज नॉट अ सिंगल मेट्रिक जिसकी बेसिस पे मैं बोलूं कि यार आप ये देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी एक्सेप्शनली वेल है। इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट। आप मल्टीपल मेट्रिक्स देखो, आप सबसे पहले कंपनी की पिछले 3 सालों की एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करो, और उन एनुअल रिपोर्ट्स में ये देखो कि कंपनी का ट्रेंड किस तरीके से है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही, इन टर्म्स ऑफ, और ये 1%, 2%, 3% वाला ट्रेंड नहीं, एक अच्छा एक्सेप्शनली वेल वाला ट्रेंड। कंपनी की जीपी मार्जिन देखो, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कि कंपनी, लेट से कोई ऐसी कंपनी है जिसने इतनी आउट क्लास स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि कंपनी लॉस मेकिंग थी लेकिन अब वो प्रॉफिट मेकिंग हो गई है।
ओवर द 3 ईयर पीरियड उसने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है। या कंपनी की आप लिक्विडिटी देखो, कंपनी के बारे में आर्टिकल्स पढ़ो, कंपनी की को इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखो, क्या इन्वेस्टर कंपनी को लेके कितना ऑप्टिमिस्टिक है, हाउ गुड डू दे फील अबाउट द कंपनी, व्हाट इज देयर व्यूज रिगार्डिंग द कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपनी के बारे में आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ोगे, आपको लाजिम कुछ ना कुछ मिलेगा, बट यू विल नीड टू डू रिसर्च ऑन दैट। अच्छा, इसमें ना वंस यू हैव ये वैसे तो मतलब एज पर ओबीयू होता ही है कि हम कहते हैं कि भाई हमने पहले टॉपिक सेलेक्ट किया फिर हमने कंपनी सेलेक्ट की। मैं वाइस वर्सा कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप पहले ये देख लो कि आपकी कंपनी आया, आपको कोई ऐसी कंपनी मिल रही है जो कि एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रही है, तो देयरफॉर यू विल गो विद टॉपिक 5। या आपको कोई आप ऐसी कंपनी देख लो जो आप के हिसाब से एक्सेप्शनली पुअरली परफॉर्म करी है, देन यू विल गो विद टॉपिक 4। सो इट इज गोइंग टू बी रादर वाइस वर्सा फॉर मी। आप ऐसी कंपनी देखो जो एक्सेप्शनली पुअरली परफॉर्म कर रही है, या ऐसी कंपनी देखो जो कि एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रही है। अच्छा, इट कुड बी एनी कंपनी, एनी कंपनी, एनी इंडस्ट्री। yes you can, yes you can, but also don't go by what you are feeling. Don't go by, let's say, ma'am, I think a lot of the students have come up to me in the past and say, yeah, ma'am, I think Saudi Aramco is performing really well. Yeah, ma'am, I think Apple is performing really well. Don't I suggest you do not think. I suggest that you support your argument using यूजिंग फैक्ट्स आप मुझे जस्टिफाई कर सको वेन एवर बिफोर यू आर सिलेक्टिंग द कंपनी। अच्छा, दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन टुवर्ड्स द एंड, बट गुड दैट यू ब्रॉट दिस अप। आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट हियर कि कब आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर रहे होगे, काइंडली जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप और मुझे मेंशन करना कि यार मैम, आई एम थिंकिंग कि मुझे ये वाली कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वाई। तो इन द यू आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप काइंडली मुझे जस्टिफाई कर सको कि नॉट लाइक डोंट सेंड मी एन एसे, डोंट सेंड मी अ पैराग्राफ कि मैम ये हुआ कंपनी के साथ, ये हुआ कंपनी ने तो ऐसा कर दिया। डोंट डू दैट। बस मुझे 4-5 लाइंस में जस्टिफाई कर सको कि व्हाई एग्जैक्टली डू यू थिंक ये कंपनी एक्सेप्शनली वेल है। फॉर इंस्टेंस आप मुझे ये कह सकते हो कि मैम, इस कंपनी का रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 25%, या इस कंपनी के प्रॉफिट्स हैव रियली टेकन अ बूम, या मैंने ये इन्वेस्टर का आर्टिकल पढ़ा और इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कंपनी इज परफॉर्मिंग रियली वेल, और इट कुड बी ऑल थ्री ऑफ इट। सो काइंडली मुझे 4-5 लाइनों में कंपनी के बारे में समझाना कि यार कंपनी एसेंशियली व्हाई डू यू फील कि कंपनी इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। डोंट डोंट गो बाय योर फीलिंग्स, डोंट गो बाय योर इमोशंस अपनी। क्योंकि होगा कुछ यूं कि और बहुत से बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ इन द पास्ट कि वो एक महीने पहले, लेट्स से आज के दिन वो या एक हफ्ते में वो कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उनसे शुरू के 1000 वर्ड्स तो उस कंपनी के बारे में लिख लिए जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली क्योंकि उन्हें सफिशिएंट डेटा नहीं मिल रहा होगा टू सपोर्ट देयर इमोशंस, टू सपोर्ट देयर थॉट्स, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जाया करने के बाद दे रियलाइज कि अच्छा, प्रॉब्ली दे वांट टू शिफ्ट, they want to change their company, and by then it's too late. Or even if it is not too late, the point is that you have wasted a lot of time. तो काइंडली पहले से रिसर्च कर लेना और इंश्योर करना कि वाकई आपकी कंपनी एक्सेप्शनली पुअरली या एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रही है। मुझसे गो अहेड लेना पहले लाजिम, हर हाल में। आई विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ फॉलो अप क्वेश्चंस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड ओनली देन once I give you my go ahead, then you go ahead with the company that you want to focus on. अच्छा, जब हम कंपनी भी सिलेक्ट कर रहे होंगे तो हम 2 कंपनी सिलेक्ट कर रहे होंगे। 2 कंपनी यानी कि हम एक तो प्राइमरी कंपनी सिलेक्ट कर ही रहे होंगे भाई, वो प्राइमरी कंपनी जिसपे हमने हमारी पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट को, आर रिसर्च रिपोर्ट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस कंपनी। प्राइमरीली हमने इसी की एनालिसिस करनी है, इसी की हमने एवेल्युएशन करनी है, इसी के बारे में हमने एक जस्टिफाई करना है कि इंडीड दिस कंपनी हैज परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल या एक्सेप्शनली पुअरली। However, हम एक सेकेंडरी कंपनी भी सिलेक्ट कर रहे होंगे। ये सेकेंडरी कंपनी विल बी यूज्ड एज अ बेंचमार्क। ये सेकेंडरी कंपनी एक कंपैरिजन पर्पस के लिए हम सिलेक्ट कर रहे होंगे, यानी ये एक कंपैरेटर कंपनी होगी, एक कंपेटिटर कंपनी होगी, और इसको सिर्फ हम एज अ बेंचमार्क ही यूज कर रहे होंगे। आपने इस कंपनी को, कंपनी बी को, जो मेरी कंपैरेटर कंपनी है, उस कंपनी की आपने एनालिसिस एंड एवेल्युएशन नहीं करनी, उस कंपनी की एक्सेप्शनली वेल और एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करना। आपने बस थ्रू आउट द रिपोर्ट बार बार कंपनी ए को
कंपनी बी से कंपेयर करना है और ये बताना है कि यार देखो कंपनी बी तो प्रॉब्ली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन मेरी कंपनी ए देखो कितना एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एरियाज में कंपनी बी बेहतर परफॉर्म कर रही हो और कंपनी ए अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, सो इट्स फाइन। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई कंपनी जो कि एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रही है वो हर एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रही हो। इट इज पॉसिबल कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, बहुत सारा रेवेन्यू लेके आ रही हो, बहुत सारा प्रॉफिट लेके आ रही हो, बट उसकी गेयरिंग बढ़ रही हो, एंड दैट्स फाइन। हो सकता है वो लोन्स ले रही है और वो उन लोन्स को अपने ऑपरेशंस में आके इन्वेस्ट कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रिंसिपल कंपनी की गेयरिंग बढ़ रही है और मेरी कंपेरेटिव कंपनी की गेयरिंग नहीं बढ़ रही। दैट्स फाइन। एक कंपनी हर एरिया में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकती, लेकिन आपने एक मेजोरिटी लेवल पे एक रीजनेबल जजमेंट करनी है। और एक एक यू नो एक आप माशाल्लाह आप लोग एक पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स हो, यू कैन टेक अ रीजनेबल जजमेंट, यू कैन प्रोवाइड योर इनपुट कि यार आई फील कि दिस कंपनी इज इंडीड परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल, सो डू दैट। तो बेसिकली व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि आपने दो कंपनीज सिलेक्ट करनी होगी। एक प्रिंसिपल कंपनी जिसके अराउंड मेरी पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट्स रिवॉल्व कर रही होगी, और एक कंपैरेटिव कंपनी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, ट्राई करना कि आप कोई बहुत टेक्निकल इंडस्ट्री ना उठाओ। बहुत कोई लेट से इंश्योरेंस नहीं उठाना, बैंकिंग की कोई कंपनी मत सिलेक्ट करना, बिकॉज इन तरह की एंटिटीज में बहुत स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं, बहुत स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूं तो आप IFRS 17 इंप्लीमेंट हो रहा होता है। जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो बाजिल का फ्रेमवर्क अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा, ये सारे फ्रेमवर्क्स ना पता भी नहीं होते जनरली लोगों को, मुझे भी नहीं पता। मुझे तो इसलिए पता है थोड़े बहुत क्योंकि मैंने दोनों एंटिटीज का ऑडिट किया हुआ है। तो आई नो कि भाई IFRS 17 में क्या बातें हो रही होती हैं। आई नो कि लेट से बैंक के लिए कार किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। आई नो कि बाजिल का फ्रेमवर्क क्या कहता है। लेकिन लेकिन इतनी टेक्निकल इंडस्ट्री में अपने आप को लेके जाओगे ना, तो आप अपने शुरू में तो बहुत मजा आता है कि ओके समथिंग लेट से मुराबा फाइनेंसिंग हो गया, इस्लामिक फाइनेंसिंग हो गया, इतनी स्पेसिफिक कंपनी है, आई लर्न सो मच, ऑफ कोर्स यू विल, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। बट आप इतनी टेक्निकल इंडस्ट्री में जाओगे तो इट इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर लाइकली या हाईली लाइकली कि आपको उससे रिलेटेड रेलेवेंट डेटा ना मिले अपनी आर्ग्यूमेंट्स, अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने का। तो इंश्योर करना कि जो भी कंपनी, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसका बहुत सारा डेटा अवेलेबल होगा, ऑयल एंड गैस, FMCG, ऑटोमोबाइल कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, कोई सी भी कंपनी उठाओ, एनी सेक्टर, आप कोई सी भी सेक्टर उठाओ, बैंकिंग इंश्योरेंस को थोड़ा साइड पे कर देना, इस्लामिक फाइनेंस और इस तरह के बहुत स्पेसिफिक सेक्टर्स को थोड़ा साइड पे कर देना, फाइनेंसिंग सेक्टर्स को थोड़ा साइड पे कर देना, ऑयल एंड गैस देख लो, आप ऑटोमोबाइल कंपनी देख लो, आप कोई भी टेक्नोलॉजी में आप कोई भी कंपनीज देख लो, आप कोई भी कंपनी देख लो, बस दो कंपनियां देखना और ये इंश्योर करना। आप लेट से 6-7 घंटा लगाओ और आप ये इंश्योर करो कि उस कंपनी से मुतालिक आपको सफिशिएंट डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा, और अच्छी सोर्सेज पे डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये विकीपीडिया डज नॉट काउंट, इन्वेस्टोपीडिया डज नॉट काउंट, चैट जीपीटी प्लीज मत इस्तेमाल करना, प्लीज। आप अपने पाव पे कुल्हाड़ी मार रहे होगे इफ यू डू दैट। तो इस तरह के सोर्सेज मत इस्तेमाल करना है, रिलायबल सोर्सेज, जैसे लेट से मुझे न्यूज़पेपर्स से उसका रेलेवेंट डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा, मुझे BBC से कोई आर्टिकल मिल रहा है नहीं मिल रहा, मुझे फोर्ब्स पे उस कंपनी के बारे में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, CNN पे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। इफ इट इज गोइंग टू बी अ चाइनीज और अ ताइवानीज कंपनी, तो आप ये देखो कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पे, यानी जो उनके लोकल न्यूज़पेपर्स है, उन पे कुछ डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा। अच्छी रिलायबल सोर्सेज पे जाना, विकीपीडिया में देखना, इन्वेस्टोपीडिया में देखना, याहू फाइनेंस और इस तरह की वेबसाइट्स में देखना, अच्छी सोर्सेज देखना। फाइनेंस टाइम्स हो गया, इस तरह के बहुत सारे बिजनेस बिजनेस न्यूज़पेपर्स के भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन पे देखना, और आपको अच्छा डेटा मिल रहा है उस कंपनी के बारे में, देन गो फॉर इट, मुझे मुझे गो हेड ले लेना एंड गो फॉर दैट। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में लेट से सिर्फ आपने सुना है और सिर्फ शायद मैंने भी नहीं सुना, या सिर्फ आप जानते हो उस कंपनी के बारे में, देन डोंट गो फॉर इट, क्योंकि 7,500 वर्ड्स लिखना किसी कंपनी के बारे में इज नॉट गोइंग टू बी अ जोक। और स्पेशली पता है क्या होगा, जब आप 7,500 वर्ड्स लिख के मुझे भेजोगे ना, उसमें से बहुत सारा कंटेंट, इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ कंटेंट यूर राइटिंग, मैं बहुत सारा कंटेंट उसमें से कट डाउन कर दूंगी। मैं बहुत सारा कंटेंट आपसे बोलूंगी कि यार आप इसको रीराइट करो। उस कंटेंट को कट डाउन करने के लिए, उसको रीराइट करने के लिए आपने दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी, आपने आपने अपने हो सकता है अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़े। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो 6-7 घंटे लगाओ और ये देखो कि उस कंपनी से मुतालिक आपको डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा, अच्छा डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा।
और बहुत सारी कंपनीज हैं जिसका मिलेगा, बहुत सारी कंपनीज है। यू जस्ट नीड टू स्पेंड सम टाइम, यू जस्ट नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च एंड यू शुड बी गुड टू गो। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करो, कंपनी की चेयरमैन का रिव्यू पढ़ो, कंपनी के डिस्क्लोजर्स पढ़ो, कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में देखो, उसकी इंडस्ट्री के स्टेटिस्टिक्स आपको कहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं बेस्ट हो गया, नहीं मिल रहे कोई बात नहीं। फिर और देखो कि यार कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करी है, लेट्स से अगर मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की कोई कंपनी सिलेक्ट करती हूँ, तो उससे मुतालिक मुझे डेटा कहाँ मिल रहा है, और अच्छा डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा, गुड सोर्सेज से डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा। डेटा अवेलेबिलिटी इज द की, प्लस रिलायबल सोर्सेज का डेटा चाहिए आपको। Wikipedia, Investopedia is not reliable. It is easily editable by anybody. Throughout the report आप Wikipedia, Investopedia तो आप मुझे नजर ही नहीं आना चाहिए आपके रिपोर्ट में कहीं। तो अच्छी रिलायबल सोर्सेस से आपको डेटा मिल रहा नहीं मिल रहा, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं यार, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसका आपको डेटा मिलेगा। आई सजेस्ट दैट यू डू नॉट, if let's say you have any company on mind, or if you go forward selecting a company जिसका आपने मुझसे गो हेड ले लिया हो, तो काइंडली उसको प्लीज चैट पे मत मेंशन करना, उसको जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप एंड आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू, ताकि आपकी कंपनी, आपकी रिपोर्ट, आपकी टॉपिक आप तक ही रहे, एंड इट्स ओनली बिटवीन यू एंड आई। अच्छा, लास्ट पॉइंट इसके, आपकी कंपेटिटर कंपनी एक तो रेलिवेंट होनी चाहिए, और कंपेटिटर कंपनी का एक लाइक विद लाइक कंपैरिजन होना चाहिए। अगर आप एप्पल को कंपेयर करने जा रहे हो किसी बहुत छोटी स्मार्टफोन कंपनी से जिसके बारे में शायद सिर्फ आप ही ने सुना है, देन इट्स नॉट अ लाइक विद लाइक कंपैरिजन। आपको एक मीनिंगफुल कंपैरिजन ड्रॉ करना है, एक अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि हाँ यार मेरी कंपनी, कंपनी ए with respect to company B, with respect to the overall industry, with respect to the global market, let's say, एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ओवर द 3 इयर्स, उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली वेल रही है। 3 इयर्स से मेरा मुराद है लास्ट 3 इयर्स, यानी लास्ट 3 फुल कैलेंडर ईयर्स। तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अपने कंपेटिटर को एक कंपैरेबल कंपेटिटर बनाना। अच्छा, कंपैरेबल के लिए कोशिश करना कि कंपेटिटर का सेम ईयर एंड हो। दिस इज नॉट अ मस्ट, 2 1 2 3 महीने तक का लैग इज एक्सेप्टेबल, बट अगर कोई लैग होगा तो उसको आपको आपकी आपकी रिपोर्ट में जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो एनी, मतलब कोई भी 3 महीने तक का मैक्सिमम लैग इज फाइन, बट यू नीड टू जस्टिफाई इन योर रिपोर्ट के वाई, फिर देन वाई डू यू फील कि कंपनी बी इज अ गुड कंपेरेबल कंपेरेटर व्हेन यू कंपेयर इट टू कंपनी ए। तो कोशिश करना, आइडियल हो जाएगा अगर सेम ईयर एंड है, आइडियल हो जाएगा अगर सेम करेंसी है, तो भाई दोनों यूएस डॉलर्स में है, आप कंपेयर कर सकते हो, आप उस पर बात कर सकते हो, आपको बात करनी है, आपको लिखना है, एक अच्छा एनालिसिस एंड एवेल्युएशन करना है। रिपोर्ट ऐसी हो कि पढ़ने वाले को पता चले कि यार वाकई मैंने मैंने कंपनी के बारे में ना पढ़ा, ना कुछ, ना सुना, ना मुझे पता है कंपनी करती क्या, लेकिन यार वाकई कंपनी एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रही है। आई ट्रस्ट जो ये बंदा लिख रहा है ना, उसको पता है, उसने रिसर्च किया, और वाओ द कंपनी इज रियली परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। यू हैव टू बी दैट कन्विंसिंग। आपने लंबी लंबी नहीं छोड़नी, आपने बात को बहुत बहुत टू द पॉइंट करना है, लंबी नहीं करनी, लेकिन येट यू शुड बी एबल टू कन्विंस द रीडर कि यार ये वाकई कंपनी इज रियली इंडीड परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। और कंपेरेटर कंपनी का एक सिमिलर साइज होना चाहिए, सिमिलर साइज होना चाहिए। अगेन, एक आप खुद एक रीजनेबल जजमेंट कर पाओगे जब आप दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट देखोगे, आप दोनों कंपनीज के पीएनएल देखोगे, उनके रेवेन्यू के नंबर्स देखोगे। एप्पल का लेट से मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1 बिलियन, और मैं उसको किसी ऐसी कंपनी से कंपेयर करूं जिसका लेट से 100,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, ये कंपेरेबल नहीं है। It is not going to provide it is not going to add a lot of value to your report. तो I suggest instead of wasting time, आप दो कोई ऐसी कंपनीज उठाओ जिन कंपनीज का जिक्र अक्सर साथ किया जाता है, या उन कंपनीज का यू फील कि यार ये कंपनीज वाकई एक दूसरे के बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं। अच्छा, थोड़ा ना स्मार्टली भी ऐसे सोचना कि इफ यू वांट टू जस्टिफाई कि आपकी कंपनी एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रही है, आप ऑटोमेटिकली कोई ऐसी कंपनी, कंपैरेटर कंपनी सिलेक्ट करोगे, कंपेटिटर सिलेक्ट करोगे जो जो थोड़ा सा 19 हो तो, या थोड़ा सा 18 हो तो, एक अच्छा एक अच्छा वो भी हो जाएगा, एक अच्छा, आई वुड से, एक इट इज ऑफ अ सिमिलर साइज, येट मेरी कंपनी ज्यादा स्टैंड आउट करेगी। तो थोड़ा सा स्मार्टली भी देखना, सोचना, कंपनीज के बारे में रिसर्च करना। आई एम नॉट श्योर जो कंपनीज आपने मेंशन की हैं उसकी करेंसी सेम है नहीं है, एक दफा वो देख लेना, या उसका ईयर एंड सेम है नहीं है वो देख लेना लाजिम।
Year end same होना is not a must. Currency I would say same होना is I should strongly emphasize on that. तो एक दफा ये देख लेना. I remember शायद मैं भी रिसर्च जब लिख रही थी तो मैंने अपने टाइम पे भी ये कंपनी सोची थी, but there was a reason I did not finalize it. I can't recall now why. It's been quite some time. Quickly, lastly, बस no, I won't take much of your time. Lastly, बस कुछ dates को दिमाग में रखना. So the latest date for you to complete the ethics module is 20th September 2024. प्लीज उससे पहले इंश्योर करना कि आपने अपना एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल कंप्लीट किया हुआ हो. सबमिशन फॉर दिस पीरियड इज बिटवीन 1st to 6th November 2024 और रिजल्ट्स आपके इंशाल्लाह आएंगे 19 मार्च 2025. मोस्ट प्रोबेबली दिस मे चेंज, but this and this are not going to change. This may change, so let's मतलब इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा रिजल्ट. But for now we do what we can, which is perfect बेस्ट हो गया. तो जस्ट बेयर इन माइंड कि आपने सबमिशन की विंडोज 1st to 6th November हैं, तो आप उसी हिसाब से प्लान करोगे, उसी हिसाब से डेडलाइंस को मीट करोगे. काइंडली स्टे इन टच विद मी थ्रू आउट, नॉट जस्ट अभी से लेके एक हफ्ते तक नहीं. इंशाल्लाह लाइक आई गिव यू अ वीक्स टाइम to select a company, to discuss it with me, to have a go ahead, मेरा go ahead लेना, और उसी के बाद ही once the company has been selected, then only we will move towards writing section 1 and section 2 of the report. But कोशिश करना कि throughout the journey you and I will remain connected. I just drop me a text on WhatsApp, and I should respond to you inshallah within some time. So I think this summarizes all that I had to say for today's session. Yeah. So let me know if you have any questions. ठीक है, चलो. I hope to connect with you soon, इंशाल्लाह. और फिर हम अगले सेशन से हमारी रिपोर्ट की राइटिंग पे बात शुरू कर रहे होंगे. हम रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने की बात कर रहे होंगे. तो I hope to see you in the next session. Thank you.